इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे द टॉपिक रियल नंबर्स एंड आई टोल्ड यू that real numbers is a very good opportunity for you to score 6 marks. And in my previous videos I have told you that how 3 exercises can fetch us 6 marks. Now let us continue what I have said you. Now the next question reads, given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM. This is also one of the expected questions for your forthcoming May 2021 examination. Maybe for 1 marks or maybe for 2 marks. If this question is asked here, so what you can do is, first thing that you should do is, you have to write the formula. HCF into LCM is equal to first number multiplied by second number. This is what you should write there. आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस तरह से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. फॉर्मूला लिखते ही आपके मार्क्स मिलना शुरू हो गए. तो अब देखिए फर्स्ट नंबर इंटू, यहाँ पर 2 नंबर है आपके पास, एक नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657. तो आप यहाँ लिखिए 306 मल्टीप्लाइड बाय 657. व्हाट यू नीड टू डू इज, दीज 2 numbers आर गिवन टू यू, दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज देयर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. और यू कैन राइट हियर HCF is given to us, that is equal to how much, 9. So that is equal to 9 multiplied by LCM, or you can say 9 multiplied by LCM is equal to 306 into 657. So this, if you simplify children, it will be equal to 306 multiplied by 657 and divided by 9 is equal to LCM. So see, if you write the formula, you will get some marks. When you put the values, you will get some marks. Now while dividing also, what you do is, you do divide like this: 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 0s are 0, 3 2s are 6. Then again if you try to simplify here, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 9s are 27. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 9s are 27. Now 102 into 219. So the better thing is, best thing is what? You just to do one thing, 102 multiplied by 219. This if you do it children, 9 2s are 18, 9 1s are 9. Then here this is 102, this is 2 2s are 4, 0 and 2. So if you simplify it, this will be equal to 22,338. So if you ask me, sir, what is LCM of what? 306 and 657 is 22,338. If you ask me, what is the probability of asking this question? Yes, I will say it is very important, and you can say that it is one of the probable questions for your March 2021 examination, sorry May 2021 examination. It is important, it may come in the examination. आ सकता है एग्जाम में इस टाइप का, या सॉल्व एग्जाम्पल आपके किताब में है, वो आप कीजिए, वो एग्जाम में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. So what is the meaning of it? देखो, this is also one of the most important questions. If you ask me, it is very very important and it may appear for your May 2021 examination. It will come for your May 2021 examination. What does it mean? See here, what does the question mean? 6 raised to n का मतलब क्या होता है, समझो थोड़ा. 6 raised to n का मतलब होता है, अगर 6 का पावर 1 मैंने किया तो 6 raised to 1 होगा 6. 6 का पावर अगर मैंने 2 किया तो 6 स्क्वायर विल बी 36. 6 का पावर 3 मैंने किया तो 216 होगा, 216 होगा. 6 का पावर 4 किया तो अगेन इट विल बी 216 multiplied by 6. So the question asked to you is whether it will end with 0. क्या इसका अंत 0 होगा? That is the question. 6 to the power n, will it end with 0? That is the question. Now let us do one more thing. See here, suppose if I take 10 square, 10 raised to n, then you see 10 raised to 1 is 10, it ends with 0. Suppose if I take 100 raised to n, it will always end with 0.
इसको आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप देखिए जब भी कोई नंबर 100⁻1 अगर करोगे या 100⁻2 करोगे तो 10,000 होगा। यानी ये नंबर का फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 होगा तो 0 आता है, इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आता है, दैट्स वाई इट विल नॉट एंड विद 0। व्हाट आई वांट टू टेल यू चिल्ड्रन इज इफ यू फैक्टराइज 6⁻n what you are going to get is 2 into 3⁻n, 2 3s are 6, but if you factorize 10 then you are going to get 2 into 5 whole raised to n, and or if you take 100, in that case if you take 100 raised to n then it will be how much, 5 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 2 whole raised to n. That means if a number has to end with 0, the prime factorization of that number should always contain 2 and 5 both, and in that case only you will get 0. तो यहाँ पर 6 में ऐसे नहीं आता है, इसलिए it will never end with 0। तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो देखिए वही मैंने यहाँ लिखा है, तो जवाब आपका क्या आना चाहिए, if any number ends with 0 it should be divisible by 10, or in other words it will always be divisible by 2 and 5 as 10 is equal to 2 into 5. So 6 raised to n is equal to 2 into 3 raised to n. The prime factorization of 6 raised to n does not contain 2 and 5 both, therefore 6 raised to n will not end with 0. So that is the answer that you have to write. That means what, for a number to end with 0 its prime factorization should contain 2 and 5 both. If it is not there then it will not end with 0. So इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल किताब में भी है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर जो है उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा है, चेक वेदर 4 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो उसका भी क्वेश्चन वही है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है और दोनों क्वेश्चन के लिए जवाब वही होगा। दैट इज अगर कोई नंबर 0 से एंड करना है तो उसके फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इट विल नॉट एंड विद 0। इफ ए नंबर हैज़ टू एंड विद 0 द प्राइम फैक्टराइजेशन शुड कंटेन 2 and 5 बोथ, अदरवाइज इट विल नेवर एंड विद 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा ये भी इंपॉर्टेंट है, check y 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कहूँगा ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है May 2021 के लिए। सारे क्वेश्चंस वैसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 में से एक एक्सरसाइज कट गया तो बचे हुए 3 एक्सरसाइज में से हमको कितने मार्क्स आने चाहिए, 6 मार्क्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे। तो अब देखिए ये कंपोजिट नंबर है क्या, सिंपल है बच्चों, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5। इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। सो इफ आई टेक 5 कॉमन तो यहाँ पर क्या होगा, 7 into 6 7 into 6 into 4 into 3 into 3 into 2 प्लस 1 होगा, into 3 यहाँ पर 5 आई हैव टेकन कॉमन, तो इफ आई टेक 5 कॉमन देन व्हाट रिमेन्स हियर इज व्हाट, क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और ये प्लस 1। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप देखिए 7 6 42 होगा, 7 6 42 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा बच्चों, 4 2 8 4 4 16, तो 7 6 42 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 168 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 2 आई विल डू, दैट इज 6, तो 6 8 48 कैरी 4 6 6 36 प्लस 4 इज 40 कैरी 4 6 1 6 प्लस 1 इज हाउ मच 8 and this plus 1 that is 109, so it will be equal to 1009,
1009 विच कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पर दिस नंबर इज हैविंग a factor other than 1 and itself. It is divisible by 5 also, it is divisible by 109 also. So it has the factors more than 1 and itself. ये दी हुई संख्या 5 से भी भागाकार कर सकते हैं, 109 से भी कर सकते हैं और खुद से भी हो सकता है। इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसके एक और खुद के अलावा और फैक्टर्स है। इट हैज़ अ फैक्टर्स अदर देन 1 and itself, so it is composite number. सिमिलरली इसको अगर आप लोगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, अच्छा ये सेकंड वन मैंने पहले ले लिया, ठीक है, फर्स्ट वन हम ले लेते हैं, सेकंड वन मैंने गलती से पहले ले लिया, कोई बात नहीं, सेकंड वन भी पहले ले लूँ, फर्स्ट वन भी। फर्स्ट वन क्या दिया है यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। इसको भी हम क्या कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। तो 13 का मतलब यहाँ पर 13 कॉमन फैक्टर है बच्चों। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय दैट मीन्स व्हाट 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 1। तो ये होगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 11 इज 77, 77 प्लस 1 इज हाउ मच 78। और इस 78 को फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 13 इंटू 78 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 39 एंड फिर इसको 39 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 13। सो दैट वे व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस इज, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि इन दिस प्रॉब्लम बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन द फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ एंड 1। So it is having a factor here 5, 109, here 13 is there, 2 is there, even 3 can be there, 13 can be there. So they are having many factors other than 1 and itself, so they are composite. Prime का मतलब क्या होता है 1 and itself होना चाहिए। So हम क्या बोल सकते हैं, both are composite numbers, both are composite numbers. Reason is they are having factors other than 1 and itself. Okay, next question है there is a circular path. So ये भी important question है बच्चों। देखिए फर्स्ट चैप्टर के एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको बहुत सीरियसली इसको लेना है। तो आप देखो कि there is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to complete one round of field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? बच्चों अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर सब क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इस चैप्टर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आएगा। टेक्स्ट बुक में का है तो आ सकता है, नंबर्स हो सकता है कुछ चेंजेस कर दे, मगर एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों देखिए कि भाग रहा है, सोनिया भाग रही है, सोनिया और दूसरा बच्चा है उसका नाम क्या है रवि, दोनों भाग रहे हैं। सोनिया मान लीजिए सोनिया यहाँ पर खड़ी है, उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए 36 मिनट लगेगा, 3 राउंड कंप्लीट करने के लिए 54 मिनट लगेगा, फिर 4 राउंड कंप्लीट करने के लिए 72 मिनट लगेगा, 5 राउंड कंप्लीट करने के लिए 90 मिनट्स लगेगा। यानी हर एक राउंड के लिए 18 मिनट उसका प्लस होता चला जाएगा। नेक्स्ट दूसरा रवि है, वो भी यहीं से खड़ा है, वो उससे फास्ट दौड़ रहा है। 12 मिनट्स के बाद ये कंप्लीट होगा, फिर 24 मिनट्स के बाद रवि का सेकंड राउंड होगा, फिर 36 मिनट्स के बाद रवि का थर्ड राउंड होगा, फिर 48 मिनट के बाद रवि का फोर्थ राउंड होगा, फिर 60 मिनट के बाद रवि का फिफ्थ राउंड कंप्लीट होगा। तो वो दोनों कहाँ मिलेंगे, हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि टाइम टेकन बाय सोनिया, देखिए आप इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 18 आप निकालो, मल्टीपल्स ऑफ 18 होगा 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36,
18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90, फिर 18 6 ज़ा 108, इस तरह से होगा। नेक्स्ट होगा मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, तो मल्टीपल्स ऑफ 12 होगा 12, 24, 36, 60, 72। हाँ, 36 मिनट्स के बाद भी ये लोग मिल सकते हैं। तो 36 मिनट्स यानी तब तक सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगा तो रवि 3 राउंड करेगा, या हो सकता है कि 72 मिनट्स के बाद जब इसका 4 राउंड होगा तो इसके 5 राउंड होंगे। तो आप बोल सकते हो कि 36 मिनट्स के बाद। तो अगर, या फिर एक काम करेंगे, विल डू वन थिंग, हम लोग क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो 18 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 18 होगा, 9 2 ज़ा 18 यानी 2 3 इंटू 3, और ये 12 कैन बी रिटन एज 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो अगर आप एलसीएम लोगे, किसका एलसीएम लोगे, 18 और 12 का, तो आपको एलसीएम लेने का मेथड मैंने आपको बताया था बच्चों कि कॉमन फैक्टर्स तो आप ले सकते हो, जो अनकॉमन फैक्टर है उसको भी आपको लेना है, यानी यहाँ 3 है तो इसको भी आप, कॉमन फैक्टर्स तो आपने ले लिया, कॉमन फैक्टर्स तो आपने ले लिया, मगर अनकॉमन फैक्टर्स को भी आपको लेना है। दैट मीन्स 3 इंटू व्हाट इज इट 2। सो इफ यू डू दिस, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट। हु इज इट, सोनिया एंड रवि। तो इस क्वेश्चन को, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन डायरेक्टली फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 32 12, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को उन्होंने क्या कर दिया, एक वर्ड प्रॉब्लम में डाल के आपको दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। आप देखिए यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके किया है, तो ये पूरे एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स आप परफेक्टली करना, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना मत। और इस वीडियो के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका सलूशन वाला एक पेज हम डाल देते हैं, ताकि आप वहाँ पर पॉज करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और आप उसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो के अंत में हम क्या करेंगे, इसका सलूशन आपको पेज में दे देंगे, ताकि आप इसका प्रिंट चाहे तो आप वहाँ से आप उसको निकाल के यू कैन यूज़ इट फॉर